الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی آیات، کثیر احادیث، تمام صحابہ و اہل بیت، تمام امت، سارے مجتہدین، سب مفسرین، محدثین، تمام فقہاء و متکلمین اور پوری امت محمدیہ کا 1400 سال سے ختمی اور یقینی فیصلہ ہے، جس میں کسی قسم کی دو رائے بالکل نہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور جو کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوا یا ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآنی آیات اور کثیر متواتر احادیث اور صحابہ کرام سے لے کر اب تک صحیح اور یقینی مفہوم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور ہم تک پہنچا اس کا انکار کرنے والا ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ عن قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن مجید کی صریح آیات، احادیث مبارکہ سے ثابت، اور تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور تمام امت محمدیہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ محمد مصطفیٰ آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کیا، فرماتے ہیں، فتح باب نبوت بے حد درود، فتح باب نبوت بے حد درود، فتح باب نبوت بے حد درود، ختم دور رسالت لاکھوں سلام، ختم دور رسالت لاکھوں سلام، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ یہ
آیت مبارکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر نص قطعی ہے، اور اس کا معنی پوری طرح واضح ہے کہ جس میں کسی تعویل کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے۔ ختم نبوت سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملنا محال ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، شانی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے، اور اس کا منکر اور اس میں ادنا سا بھی شک و شبہ کرنے والا کافر، مرتد اور ملعون ہے۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ 20 آیات ایسی ہیں جو مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تائید کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پہلو کو دیکھا جائے تو نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، پہلے کے انبیاء خاص اقوام کی طرف رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے اتار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، دکھیوں کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اسی عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، دو جگ کے مختار، آ گئے سرکار۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ خزان مدینہ میں آ کے ایک نئی خوشی محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نئی دنیا میں آئے ہیں۔ یہاں پر پیر صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، ایسا کرتا ہے کہ بس پیر صاحب کے سامنے بیٹھتے رہیں اور پیر صاحب کا دیدار کرتے رہیں۔ الحمدللہ میں 12 ماہ میں سفر کر رہا ہوں، جاری ہے میرا 12 ماہ، 4 ماہ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں 15 ماہ اور سفر کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت جب ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں تشریف لاتے ہیں تو دل کو سرور مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی یہ عادت مجھے بہت پسند ہے، یعنی کہ وہ ہر ٹائم مسکراتے رہتے ہیں۔ دین کا کام کریں گے، مساجد کو بھی تعمیر کریں گے، نیکی کی دعوت کو عام کریں گے، برائی سے منع کریں گے، لوگوں کو مساجد کی طرف لے کے آئیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، اس طرح انشاءاللہ جشن میلاد النبی منائیں گے۔ یہاں پر میرا پہلی دفعہ آنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ یہاں پر جو لائٹنگ ہوئی اور پیر صاحب کی زیارت جو ہم نے کی، مدنی مذاکرے میں ہم نے جو ہے شرکت کی، بہت اچھا لگا۔ مجھے الحمدللہ یہاں پہ آ کے بہت اچھا محسوس ہوا۔ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا، کھانے کا نظام، صفائی کا نظام، جس نظام میں بھی آپ دیکھیں تو ہمیں الحمدللہ کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملا، بہت اچھا نظام یہاں پر ہمیں ملا۔ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے نا، پہلے چھوٹی کرواتا تھا داڑھی، آج کے بعد جو ہے نا موٹی داڑھی رکھوں گا، جو پہلے کٹوائی تھی اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ میری اچھی نیت یہ ہے کہ میں سنت رسول کے مطابق ایک موٹی داڑھی رکھوں گا، اور میری جو پہلے کاٹ چکی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت سے دیکھ کے ہمیں انسپائریشن ملتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے کہ امیر اہل سنت اس قدر بڑھاپے میں ہو کر امت کی اصلاح کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دین کا کام بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت سبق
सबक हासिल होता है। इतना काम कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में एक डॉक्टर साहब ने अमीर सुन्नत को क्रेडिट दिया कि आप इतना काम कर रहे हैं और इतनी जल्दी इतना काम कैसे हो गया। तो अमीर सुन्नत ने फरमाया सब अल्लाह पाक का करम है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है। इतना काम करने के बावजूद भी अपनी तारीफ नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। अमीर सुन्नत ने आज जादू के बारे में बताया। कई लोग तो जादू का वैसे इनकार करते हैं, लेकिन इसका इनकार कुफ्र आज ये बात भी हमें मालूम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 15वां जश्न विलादत अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम से मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माहीगीर के तहत 10 रबीउल अव्वल 4 सितंबर बरोज जुमेरात दोपहर 2 बजे कैमारी जेटी से समंदरी जुलूस इंशाअल्लाह मरहबाया मुस्तफा की सदाएं लगाता हुआ रवाना होगा। अमीर सुन्नत माहीगीर शोबे वाले इस्लामी भाई आपको समंदरी जुलूस की दावत ही दे रहे हैं। आप करम फरमाएं, आपकी शफकतों से जुलूस हो रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका अत्तार की आमद। नबी 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 रिकॉर्डेड दावत मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अरबी की आमद मरहबा, परशी की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, शहदा की आमद मरहबा, मरहबा मरहबा। आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद हो इतिकाफ की नियत कर लिया करें, सवाब मिलेगा जब तक मस्जिद में रहेंगे। आज 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 8वीं रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियादुल सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 8, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज क़यामत शुहादा यानी शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चौदह सैंतालीस के रबीउल अव्वल शरीफ की आज 8वीं शब है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी। आप सवाल कीजिए, सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, जरूरी नहीं बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, भूल होने की सूरत में मुझे शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह किश्तियों का जुलूस निकल रहा है। ये अपने 11 रबीउल अव्वल शरीफ 4 सितंबर नहीं 11 रबीउल अव्वल जुमेरात को नहीं 10 रबीउल अव्वल शरीफ को निकल रहा है। माशाअल्लाह ये बरसों से निकल रहा है। माशाअल्लाह 2 बजे दोपहर को इन्होंने ये तरकीब बनाई है, तो मुझे भी दावत पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं ये जजीरों में गया हूँ, बयानात किए किश्तियों में बैठकर, और फिर मुकाफला भी हो, पब्लिक फिर समुंदरी सफ़र का किसको शौक़ नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ी मतलब, और मुफ्त किश्तियाँ चलती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं सफ़ीने में कल जो सफ़ीने का वाक़या सुनाया था हज का, तो मैं याद आया मुझे कि ये भी एक मंजर बड़ा दीदनी था। ये बाज़ किश्तियाँ भी मेरे पीछे दौड़ रही थी, इन्हीं लोगों की। ये बच्चे अब जवान हो गए होंगे, बुजुर्ग जो होंगे वो पता नहीं अब किस हाल में होंगे। ये किश्तियाँ दौड़ रही थी मुझे सी ऑफ करने के लिए। तो जब हम लोग गहरे पानी में गए ना, तभी गहरे पानी में छोटी किश्तियाँ नहीं जा सकती, पलट गई। तो माशाअल्लाह ये इनकी दीवानगी बता रहा हूँ। ये वहाँ बहुत पुराना दावत इस्लामिया काम है। अगर दावत इस्लामिया काम ना हो तो किश्ती की मुर्गी भी नहीं तोड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बत है, अकीदत है। तो मैं जाता था माशाअल्लाह, बड़ा मतलब इज्तिमा होता था बस मस्जिदों में इनकी। और ये बहुत पुराने वाक़यात हैं। अब जो यहाँ बेटी न्यू जनरेशन तो पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद, तब सिक्योरिटी इशू नहीं होते थे। अब भी इन्होंने दावत दी तो ज़रा मेरे मुँह में भी पानी आता है, मैं भी जुलूस में शिरकत करूँ, लेकिन अब क्या करूँ, खाली सिक्योरिटी इशू ही नहीं है। मैं जाऊँ तो फिर जो पब्लिक का रुख होगा ना,
किश्तियाँ पूरी नहीं होंगी। यानी उस जब मैं सफीने में जा रहा था तो इक्का दुक्का ऐसे सही भाई थे जो बेकाबू थे और भागकर समुद्र में छलांग लगाने के लिए दौड़े थे, जो मुझे ये मनाजिर याद आ रहे इक्का दुक्का, और लोग इनको पकड़ लेते थे, वरना वो जज्बात में मतलब कि हम चल मदीना वो दौर होता, हम भी साथ चलेंगे। तो अल्लाह ये हमारी इज्जतें मोहब्बतें सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक दौर था। तो अब मेरे लिए तो खैर वैसे सिक्योरिटी इशू भी है, और वैसे भी अब मैं बाहर निकलूँ तो मेरे लिए बहुत आजमाइश है, पब्लिक का रुख और फिर ये भीड़ भाड़ मुश्किल। मतलब मैं जब हिंद में गया था बम्बई में तो वाक़या याद आ रहा है मुझे कि इतनी पब्लिक जमा हो गई थी। उधर भी बहुत मोहब्बत करते हैं मुसलमान जो है ना, कि पुलिस को लाठीचार्ज करने वाला था, पुलिस लाठीचार्ज किया था भगाने के लिए, पता नहीं क्या हो गया, झगड़ा हो गया, हंगामा हो गया। गालिबन ये बम्बई का वाक़या है। जहाँ भी दुनिया में मुसलमान है वो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो पता नहीं क्या हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दावत इस्लामी बनी, मोहब्बतों के जाम जो तकसीम होने लगे और लोग दीवाना वार दावत इस्लामी पर टूटने लगे, और ये आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया में कहाँ कहाँ दावत इस्लामी काम कर रही है। अल्लाह, ये सब अल्लाह का करम है। अभी वो तसुरात दूसरा ना, मेरा कोई कमाल नहीं है, तो ये वाकई ऐसा ही है कि बंदा बोले मेरा कमाल है तो उसको जवाल लग जाएगा। तो अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से बचाए। ये हकीकत में ये दिल की सदा है कि वो सब रब का करम है, रब का करम है, रब का करम है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का, तसव्वुर में मुझे साथ ले चलना। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि किसी को घरेलू झगड़े के फैसले के लिए बुलाया जाए तो उसको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो अपना ख्याल रखे कि ये निपटा भी सकता है कि नहीं, झगड़े बढ़ ना जाएंगे। गुस्से वाला तो नहीं है, क्योंकि इसमें बात वैसी टेढ़ी टेढ़ी बातें होती है कि वो दिमागी का काबू, बात ऐसा होता है वो उल्टी बात अगला कर रहा होता है, तो घूम जाती है आदमी की कि यार क्यों झगड़े का मूड तो ये है, तो अब उसको आपने बोल दिया यार बुनियाद तो तुम हो झगड़े का, टेढ़ी बातें मेरे सामने कर रहे हो तो पीछे से क्या नहीं करते होंगे, तो फिर फैसला हो गया। इसमें बड़ा समझदार आदमी और बुर्दबार दूर अंदेश और सब्र ज़ब्त वाला आदमी, फिर कुछ इसके बाद इल्म भी हो कि जो इंसाफ कर सके। ये नहीं कि आलिम दीन हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना इल्म हो कि वो मतलब भले बुरे की तमीज़, ये परख हो कि कौन गलत है कौन गलत नहीं है, और फिर ये कि वो इंसाफ कर सके। इस तरह की खूबियाँ हों इसमें, तो बेशक वो ज़रूर फैसले करवाए कि ये भी अगर अच्छी नीयत होगी तो सवाब का काम है, वरना अपनी वजह से फसाद बढ़ेगा वगैरह ऐसी कोई कैफियत हो जैसे जिसकी मैंने आपको एक झलक अर्ज की, तो फिर वो फैसले ना करवाए, नहीं तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। फिर जैसा मामला, दो बच्चे लड़ रहे हैं उसको फैसला तो आम आदमी भी करवा लेता है, छुड़ा देता है जो भी है, जैसा झगड़ा बाजू का। अब झगड़े तलाक के और ये फैसले करवाते हैं लोग, मतलब वाकई यानी कि खुदा का खौफ नहीं है। तलाक 3 दे चुका, अब ये बड़े बड़े फैसले करवाते हैं, बाजू का से वाकया सुनने में आते हैं, चलो तौबा करो, चलो तुम 2 नफल पढ़ लो, तौबा करो, आइंदा नहीं करना ऐसी गलती, अल्लाह माफ करेगा, चलो घर में जाओ। ये तो फैसला थोड़ी है, 3 तलाक दे दिया तो इस तरह फैसला थोड़ी होता है। तो ये कि ये अवाम मतलब इल्म नहीं है, तो जिनको आलिम नहीं करता इस तरह अवाम, तो इस तरह के फैसले तो उलमा करेंगे। ये पंचायतें लेकर ये बिरादरियाँ बैठती है ना, इसमें भी बड़ा मसला है। अगर 3 तलाक हो गई है, अब बोलोगे हम सुलह करवाए, तो ये काम आपका नहीं है। फिर इसके सुलह का एक शरीय है, ये शरई तौर पर वो है निज़ाम हलाले वाला, लेकिन अब इसको तो सारे कौन तैयार होगा, तैयार हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अवाम ये शायद ना करें, ये आपस में सुलह करवा देंगे, माफा माफी करवा देंगे और घर में भेज देंगे, तो ये हराम होता रहेगा, हराम की औलाद पैदा होती रहेगी। अगर 3 तलाक दे चुका है तो इसको तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं, उससे निकाह खत्म हो जाता है ना दोनों का। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए और सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुबह तैबा में हुए बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। भाई हम महफिल में काफी जल्दी आ गए ना, अभी तो पहले ही नाच आया है। हाँ भाई वाकई अभी तो काफी नाच खाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा। चलिए नाच सुनते हैं। तेरा जेलाल सदका नूर का, अल्लाह 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 अल्लाह। भाई ये चक्कर आपने वाली गेम खेली है? नहीं भाई मुझे ना कोई खास शौक नहीं है, हाँ कभी कभार टाइम पास के लिए खेल लेता हूँ। अरे हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अभी भी फारिग बैठे हुए हैं और वैसे भी महफिल तो बहुत लंबी चलेगी। कहाँ पर खेलता हूँ मैं? आज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का, आज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का। भाई टॉफी खाओ।
खाओगे? बड़ी मजे की टॉफी लाया हूँ। हाँ भाई क्यों नहीं, काफी देर से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ खाओ खाओ, वैसे भी यहाँ जाने में काफी टाइम बाकी है। हाँ भाई सही कह रहे हैं आप, अभी तो नात खानी चल रही है, पता नहीं कितने नात खाएंगे, फिर एक नात खा पता नहीं कितनी कितनी नातें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सलात तो सलाम होगा, फिर दुआ होगी, फिर आखिर में न्याज तकसीम होगी, काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए तो मैं हमेशा कहीं भी महफिल होती है तो एंड में जाता हूँ या फिर हल्का फुल्का कुछ खा के जाता हूँ, आपके ज़्यादा तो इंतजार में करना पड़ेगा। लो भाई आज आपकी बात पूरी हो गई, लगता है आज मेरे से ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, न्याज जल्दी आ गई है। चलो शुक्रिया, जल्दी खाने को मिलेगा। प्यारे अमीर सुन्नत, आजकल इन बच्चों की तरह बड़ों का भी अंदाज यही नजर आता है। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मिलाद की महफिल कैसी होनी चाहिए और हमें किस तरह इन महफिल में शिरकत करनी चाहिए। हबीब की आमद मरहबा, तबीब की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की माशाअल्लाह। ये भी एक खाका है समझाने के लिए। तो पूछा बच्चों के साथ के बड़ों के साथ भी ऐसे, बड़े भी इस तरह करते हैं, बड़े से 2 कदम आगे होते हैं, पीछे वो भी नहीं हटते है। बाकी उन्हें कि हम लोग अदब अदब का ख्याल रखते नहीं है। सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि यहाँ रोज़ाना महफिल मिलाद होती थी, डेली बिला दफ़ा, और लंगर भी होता था। जो मुझे याद पड़ रहा है, मैंने नोट किया जो कि हुज़ूर सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह सारी महफिल में 2 जानू बैठे रहते थे। है नहीं किसी का कमाल। हाँ ये किसी की इतनी ताकत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी आपकी उम्र उस वक्त भी काफ़ी हो चुकी थी। महफिल में फिर इधर की उधर बात करना, और भी संजीदा आप तशरीफ रखते थे, बहुत दुआ पे जैसे आमीन कहना, तो दुआ या शेर पर हाथ उठाना, हाथ फेरना, ये करते थे। लेकिन मतलब ये कि कोई इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ बातें करते हैं, कान में कानाफूसियाँ करते हो, ये कभी मैंने देखा नहीं। हजरत को बड़ा आशिक रसूल, बड़े बाद महज़ब शख्सियत के मालिक थे। तो यूँ मतलब ये देखिए जितना अदब करेंगे ना, महफिल नात का, महफिल वाज का, बयान जहाँ होते हैं दीन के, तो इतना हमें मतलब इसमें फ़ायदा होगा। और बात सूरत बेअदबी की फिर हो सकता है गुनाहों में भी हमें दाखिल करे। तो यूँ मतलब जो ये खाका दिखाएगा ना, ये तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कुछ करते होते हैं लोग, इधर उधर की भी आंकते होते हैं, गीबतें भी कर रहे होते हैं। इसके पास माइक आ गया, चलो भाई चलो, ये तो माइक नहीं छोड़ेगा। अब ये कितनी दिल आज़ार बात है, अगर वो नातख्वान सुन ले तो कि दिल पे गुजरे क्या है, कितना बुरा लगे उसको। यार ये कहाँ यार, फट्टे बैठो जैसी आवाज़ है यार, चलो चलो, कितना बुरा लगे उस नातख्वान को। और ये अगर वाकई उसकी आवाज़ ऐसी नहीं भी है तब भी नाम, और बारगाह खुदाबंदी में या बारगाह रिसालत में आवाज़ देखी जाती है या दिल देखे जाते हैं? अंदर छोटे के वहाँ दिल देखे जाते हैं। आवाज़ें तो खैर अच्छी होती है, एक से फनकारों की भी आवाज़ एक से होती है, जो गुलूकार होते हैं, गाने बोलते हैं। तो आवाज़ होना तो अब ये है करम की बात है, जिसकी आवाज़ अच्छी है उसने नात ख्वानी कर रहा है, वो नात शरीफ पढ़ा है। वरना जिनकी आवाज़ अच्छी थी वो गाने बोल रहे हैं गंदे गंदे। तो यूँ मतलब मुकाबलतन तो नात ख्वान को ही तरजीह रहेगी कि ये बहुत अच्छी लाइन इसने इख्तियार की। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि बात होती जो बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर रही ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो खूबसूरत आवाज़ वाला अपनी आवाज़ पर इतना है नहीं, इसको हरगिज़ अपना कमाल ना समझे, अपना कमाल भी ना समझे, इस के सवाल पर भी नजर रखे कि अगर मेरी जो इस वक्त आवभगत हो रही है, मेरी अच्छी आवाज़ है इसलिए लोग मेरे को मान देते हैं, अगर ये आवाज़ बैठ गई तो क्या फिर भी मुझे मान देंगे? फिर पूछेंगे नहीं, ये आपको इसका मतलब मान नहीं दे रही है, आप ये आवाज़ को मानते रहे। तो इसलिए मतलब अल्लाह से डरे कि कब आवाज़ मेरी ख़त्म हो जाए, बैठ जाए, गला ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नात शरीफ पढ़ते पढ़ते लोग बिल्कुल रंग में आए, समझे, और झूम रहे, एकदम आवाज़ फट गई, फट जाती है बात, फट गई तो क्या करोगे? आपके बस में तो है क्या? तो यूँ मतलब अल्लाह पाक से बंदा डरता रहे। तो यूँ नातख्वानी में जब भी जाए ना, तो बेशक कम बैठे, अगर ज़्यादा नहीं बैठा जाता, कोई उज़र है आपको या दिल नहीं लग रहा, तो जितनी देर आप बैठें अदब से बैठें, अगर पाँव नहीं थकते, साथ देते हैं तो बेशक 2 जानू बैठें। वैसे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर 2 जानू बैठते थे। ये निशस्त 2 जानू बैठना, ये इससे आजिज़ी का इज़हार ज़्यादा है, आजिज़ी, तवाज़ु। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु के तो क्या कहने। तो इसको पेश नज़र रखते हुए कि 2 जानू बैठना, ज़्यादातर बैठना, ये सुन्नत
मुतलकन सुन्नत में नहीं कहूँगा, मैं मुफ्ती साहब भी नहीं है, लेकिन ये कि ज़्यादातर नशस्त जो किताब में लिखा है तो ये है आप दो जानों और किबले की तरफ मुँह करके ज़्यादातर आप तशरीफ़ फरमा होते थे। तो ये तरकीब बना सकता है तो बनाए, वरना ये नहीं कि वो इस तरह ना बैठेगा किबले की तरफ, किबला इस तरफ महफिल जिस अंदाज में बनी हुई है तो आप पीट करके महफिल की तरफ बैठेंगे तो फिर लोग उंगली उठाएंगे। ये भी नहीं करना है, मौके की मुनासबत से मौका है तो किबले की तरफ मुँह करके बैठ गए, दो जानू बैठ गए, जितना हो निगाहें नीचे रखे और कोफ्त बोरियत शैतान दिलाएगा तो ये कि यार आवाज़ जो भी हो बोल क्या रहा है, नाम किसका ले रहा है, मेरे रब का ही तो नाम ले रहा है। एक वाकया लिखा है कि एक मतलब कोई ना एक शख्स था कि जिसने मतलब जो मतलब के वैसे तो किरदार नहीं था कोई सा, फौत हो गया तो उसको किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ, तो उसने कहा कि मैं एक बार अपने मतलब बैठा हुआ था ऊपर कहीं जो भी कुर्सी या तख्त या जो भी था तो बैठा हुआ था, तो करीब से मतलब मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आवाज़ आई कोई तिलावत जैसे, तो मैं अपनी कुर्सी से उतर आया बैठक से और मैं अदब से बैठकर मैं गौर से उसको सुनने लगा। तो मेरे रब के नाम ने मेरे अंदर एक मिठास पैदा की, मुझे उस मिठास महसूस हुई कि मेरे रब का कलाम पढ़ा जा रहा है, तो अदब से मैं सुना और मरने के बाद यही मुझे काम आ गया और मेरी बख्शिश हुई। तो हम मतलब अल्लाह का नाम सुने, तिलावत सुने, कुरान हुस्न के साथ उतरा है, हदीस पाक में गम के साथ उतरा है और इसको गम से पढ़ो, तो जब तिलावत हो तो दो जानू मुमकिन है, मदीना मक्का मदीना नहीं तो जिस तरह भी बैठे अदब से बैठे, इधर उधर देखना, इसको इशारे करना कुछ भी नहीं, तवज्जो से सुने, और जो सुनने के लिए हाजिर है उसको तो फ़र्ज भी है कि ध्यान लगा कर तवज्जो से सुने। तो अब ये सुने आप, और रोने जैसी सूरत बन सकती है तो बेशक बनाए, और अगर रोना आ जाता है तो खुदा की कसम शहादत की बात है, रोल लें आप कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गम के साथ कुरान सुनना, सहाबा इकराम गम के साथ कुरान सुनना, लेकिन मतलब हदीस पाक में खुद इरशाद फरमाया गम के साथ सुनो, तो ये मतलब इस तरह सुने तो अल्लाह करेगा इसकी बहुत बरकतें हमको मिलेंगी। इस तरह नाते पाक भी जितना हो सके मतलब तवज्जो के साथ जहाँ जहाँ मुमकिन हो हम सुने, और आँखें हो सके तो बंद कर लें, आका का तस्वुर बांध लें, सब्ज़ गुंबद का तस्वुर कर लें, और इस तरह मतलब अगर हम सुनेंगे ना तस्वुर बांध कर जो अशार आ रहे हैं इस पर, अगर उर्दू अच्छी है और उर्दू में बोल रहा है तो और लुत्फ आएगा, माना भी समझ में आएंगे। जहाँ इस्तिगासा है तो खुद अपना इस्तिगासा जैसे पेश कर रहा है, फरियाद कर रहा है, और मतलब ये किस तरह तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। यानी कि मतलब जिस नात में सुनने में आँख नम ना हो तो उसमें कहो कि मतलब इतना वो लुत्फ नहीं रहता अपने लिए, तो नम आँख से पुरनम आँख से इस तरह पढ़ने वाला भी, अब पढ़ने वाले कभी बादलों में घूर रहे होते हैं, आसमानों में घूर रहे होते हैं, इधर हाथ नचा रहे उधर हाथ नचा रहे, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मैं वाकई में मतलब आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे समझ में भी नहीं आता, यूँ कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे हो यार, अदब से बगैर हिले उजले भी तो पढ़ सकते ना, हाथ नचाए भी कर भी, समझे, आपका दिल भले झूमता हो, हाथों को बिला वजह झुमाना समझ नहीं आ रही, मतलब ये मेरी मतलब यूँ देखना इधर देखना, फिर मतलब क्या ढूंढ रहे हो, ढूंढना है इधर ढूंढो दिल में, दिल में कुछ है, फजा में क्या है, तो काश मेरे आका का इसमें याद का बसेरा हो जाए दिल में। तो छोटा सा मुंह मेरा बात बड़ी सी है, क्या आप मेरे दिल की बस्ती भी बसाओगे। तो इस तरह अगर नातखान भी अदब से नम आँखों से इश्क में डूब कर नात पढ़े, और मैं तो एक बहुत पहले मुतासिर हुआ एक नातखान से, वो कभी कभी वाकया सुनाता हूँ, तरगीब भी है, तो घर में एक महफिल थी, कोई धूम धाम धमाले और ये कुछ नहीं था, बहुत पुरानी बात, दावत इस्लामी भी नहीं थी उस वक्त, तो किसी के घर में दावत दी थी, उसने कहा आ जाओ, क्या पता चला होगा वैसे पहुंच जाऊंगा मैं, तो नात शरीफ दोस्त था मेरा, मेरे को कहा होगा, तो खैर वो एक था अधेड़ उम्र का नातखान था यार, वो पढ़ रहा था, मैं तो कभी देखा ही नहीं था इस तरह पढ़ते, हाथ जोड़ जोड़ के वो पढ़ रहे थे वो नातखान, दिल में वो याद तेरी, शायद ये पढ़, दिल में वो याद तेरी को शायद तन्हाई, ये तो जो लुत्फ उसमें आया है तो बस मदीना मक्का मदीना मीठा मदीना, तो ये नातखान था यार। वो दौर और था जब हम लोग मतलब नाते पढ़ते सुनते थे, अब आहिस्ता 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 पहले रोने वाली तर्जें, गमगीन होने वाली तर्जें और सोच तर्जें हुआ करती थी, अब झुमाने वाली तर्जें, अब बंदा रोएगा तो जेब में हाथ भी डालेगा तो रुमाल निकालेगा आंसू पोंछने के लिए, और झूमेगा और हाथ डालेगा तो कुछ और निकालेगा, अब खुदा बेहतर जाने जिसकी क्या नीयत, समझे। तो इस तरह मतलब है कि अब पुरसोस कलाम कम हो गए, झुमाने वाले तर्जें ज्यादा हैं, ये सब इसको जो भी इस फील्ड के ना मेरी बातें समझते होंगे यार, हम झुमाने वाली तर्ज नहीं पढ़ेंगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा, हम लोगों के मजा के पीछे ख्वार हो गए, मतलब वो असल जो इसकी रूह थी ना वो निकल गई यार। कोई झूमे घूमे सुने ना सुने, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं अगर वो सुन लेना बेड़ा पार है।
وہ بھی دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. تو اللہ اس لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ بچوں کا بھی جو دیکھا اس پر یہ اتنی ساری ماشاءاللہ یہ تو خاکہ تھا سمجھانے کے لیے, تو بالکل یعنی کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے, جتنا ادب ہوگا ہم فائدہ ہوگا. بعد اب نصیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج عشق میرے ناک سنائے تو عجب کیا, آج عشق میرے ناک سنائے تو عجب کیا, سن کر مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. منہ ڈانپ کے رکھنا میں گنہگار بہت ہوں, منہ ڈانپ کے رکھنا میں گنہگار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا, میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذرا صوبائے میلاد شہ افراد ہے, عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. بندرا صوبائے میلاد شہ افراد ہے, عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. بندرا صوبی آئی عید میلاد النبی, بندرا صوبی آئی عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی, جھومو سب اسلامی بھائی, عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی, عید میلاد النبی. بندرا صوبائے میلاد شہ افراد ہے, عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. سبحان اللہ. یہ کہاں کے مناظر تھے؟ کراچی ہے, ہند سورت ایک شہر ہے گجرات کا, اس کے مناظر تھے. تو ہر جگہ جشن ولادت کی دھوم مچی ہوئی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا تھا, اب یہ ٹھیک ہے اب شاید احتیاط فرمائیں گے, کوئی بڑا لکھا نا کہ سب کو نظر آئے. موبائل فون والوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا لکھا ہوا ہے. تو جیسے کہ یہ فیضان میلاد یہ لکھا ہوا ہے نا, تو اس جگہ پر لکھا ہوتا نا کہ سورت ہند, تو سب کو پتہ چلتا اچھا ہوئی خالی کراچی ہی نہیں ہے, جگہ جگہ اور بھی اٹلی لکھا ہوتا ہے, وہ پلے کسی نہیں پڑتا ہوگا یہ کہاں کے مناظر ہیں. جب ہم کو تشہیر کرنی ہے کہ بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں, نہ ہماری ایجاد ہے, یہ تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے جشن ولادت. دعوت اسلامی کی یہ آنے کے بعد الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے, شروع نہیں ہوا ہے, اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. اور یہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام بلال اتاری ہے, میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, لیکن ان کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں اور کیسے چلی, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے, 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور بی بی فاطمہ کی نسل کیسے چلی, تو یہ مطلب نسل اول بیٹی سے چلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ تخصیص ہے کہ ان کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ, امام حسن رضی اللہ عنہ, ان سے نسل چلی. سرکار مالک و مختار ہے, تو یہ مطلب ایک خاصیت ہے, خصوصیت ہے, اور کہیں بھی کسی کی بھی بیٹی سے نسل نہیں چلے گی, ان سے چلی ہے. یعنی یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے. کوئی بولے یار یہ اصول یہ قاعدہ وہ سب اپنے پاس رکھو, میرے مصطفیٰ کی بیٹی سے نسل چلی ہے بی بی فاطمہ سے. سارے سادات کرام, کوئی بھی اختلاف ہے تو سادات کرام کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا, یہی سب بی بی فاطمہ کی اولاد. تو یہ حسنین کریم ان سے بس اولاد چلی ہے یہ سادات کرام کی, تو یہ بیٹی سے چلی ہے. اور مطلب کسی سے ہے نا, محسن تو محسن تو وفات پا چکے تھے. اصل تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خود ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ہر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے نسل تو چلتا ہے, آگے نسل چلتی ہے,
بنو اللات جن کو بولتے ہیں، وہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے، کہ ان کا والد بھی میں ہوں اور انہی سے نسل چلی۔ اور اس میں حکمتیں بھی بہت ساری تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے شہزادے ہوں گے اور انہی سے نسل چلے گی، جس کی بہت ساری حدیثوں میں اشارے بھی موجود ہیں۔ باقی جو شہزادیاں تھیں ان سے ویسے ہی اولاد آگے نہیں چلی، جیسے مثال کے طور پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک ہی شہزادے تھے، وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی شہزادی تھیں، ان کے ایک بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی 8 سال کی عمر میں تقریباً ان کا بھی وصال ہو گیا تھا، اور ایک شہزادی تھیں صرف حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے نسل چلنے کا نہیں تھا، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں نکاح کے اندر آئی تھی۔ تو جو اولاد چلی ہے وہ صرف اور صرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں شہزادوں سے ہی چلی ہے۔ اور کافروں نے تانا بھی دیا تھا نا، نسل قطع، ان شانئک هو الابتر۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہم نبی کو مانتے ہیں، بس یہ جو کریں، ہماری آنکھیں، دل کی آنکھیں، ہر آنکھ بند ہے ہماری، جو کریں وہی درست ہے۔ تنقید کا معاملہ ہی نہیں ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بوستان لنک یہ پہاڑی ایریے کی ایک جگہ ہے، اس وقت میں موجود ہوں ازبکستان کے بارڈر پہ، اس سے آگے قزاقستان شروع ہو رہا ہے۔ جس مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مزار ہے شیخ عمر باغستانی کا۔ آپ خواجہ عبید اللہ احرار جو مولانا عبد الرحمن جامی کے پیر و مرشد ہیں، ان کے بھی مشائخ میں سے ہیں۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے دل کو شریعت کی طرف لے کر نہیں آتا اور اپنے آپ کو شریعت کا تابع نہیں بناتا، ایسا آدمی شریعت پر عمل کے بغیر اگر روحانیت کا طالب ہو تو یہ سخت ترین گمراہی میں ہے۔ اور دوسری بات آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، شیخ مشو، صوفی مشو، مسلمان شو، اے ولایت کا لبادہ اوڑھ کر اور لباس خضر میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والوں، صوفی نہ بنو، شیخ نہ بنو، مسلمان بن جاؤ۔ یہ دو فرامین آپ کے میرے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امیر اہل سنت تشریف فرما ہے، امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان فرامین کی مزید کچھ وضاحت بھی آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ اکبر، آپ نے وضاحت کے سامنے کری دیے نا حضرت کے ارشاد کی، کہ مطلب وہ بغیر شریعت کے، مطلب وہ جو طریقت کا راستہ اور روحانیت اور مطلب کوئی مقام پانا چاہے تو وہ نہیں پا سکتا۔ پہلے نے وہ شریعت کا لبادہ، وہ اصل لفظ لبادہ لباس، تو شریعت کا لبادہ جب تک نہیں پہنے گا اس وقت تک وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، گمراہی کے راستے پر رہے گا وہ۔ اسی طرح جو مطلب ہے کہ شیخ اور صوفی بنتے ہیں، وہ یہ جعلی مطلب متصوف بولتے ہیں، متصوفہ ہے نا، متصوف جو صوفی نہیں ہوتے ایکچولی، جھوٹے صوفی، جیسے شاعر اصل جو ہوتا ہے شاعر، اور جو غلط چلتا پھرتا ہوتا ہے شاعری نہیں جانتا تو متشاعر اس کو بولتے ہیں، متشاعر جو غلط سے غلط اشعار لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو اس طرح کے مطلب عام طور پر جاہل صوفی ہوتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی مزاروں پہ بھی ملیں گے، یہ سمجھے، لگے دم تک مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا مطلب یہ کہ یہ سب کمائے اور کچھ تو سب چھوڑو، مسلمان بن جاؤ۔ یعنی مسلمان بن جاؤ اس کا مطلب جو اس طرح کر رہے ہیں اس کی ہم کہ کافر ہیں، مطلب سچے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، اور پھر منزل کی طرف چلو، ورنہ تمہیں منزل ملنی نہیں ہے۔ کشتی میں بیٹھے ہی نہیں ہو تو کنارے لگو گے کیسے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ان کی ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں یہ ہیں ہی نہیں، یہ ان کے درجے سے یہ اوپر کی باتیں ہیں، یہ آگے کی باتیں ہیں، یہ ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح کی بھی بات کریں، یعنی عقیدے کی، عمل کی اصلاح کی بات کریں، اور جیسے نماز ہے، عبادت ہے، شریعت کے احکامات کی پاسداری ہے، تو پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا۔ ہاں یہ بولتے ہیں مطلب اس طرح کہ مطلب مولوی اور فقیر کی جنگ پرانی ہے، مطلب یہ مولوی ہو رہے فقیر ہو رہے، یہ ہماری باتیں ان کو کہاں سمجھ ہے، مولوی کو آتا کیا ہے یار، یہ مطلب ہم یہ سب پہنچے ہوتے ہیں کہاں تک؟ شیطان کے قدموں تک، سمجھے، اللہ تک نہیں پہنچے ہوتے۔ اب بولتے ہیں یہ تو بہرحال یہ کہ ہمارے علماء کا تو اعلیٰ حضرت وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ جو شریعت و طریقت کو جدا جدا کہے گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، تو بغیر شریعت کے طریقت مل ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے وہ اب یہ کہ غوث پاک کون تھے؟ عالم تو تھے، کیونکہ وہ ولایت کے لیے عالم ہونا شرط ہے، تو عالم تو تھے۔ جتنے بھی اولیاء کرام کی آپ تاریخ اٹھا لیں، یہ سب بڑے بڑے عالم تھے، علماء تھے، اور جو بھی اس طرح کے مطلب جو بولتے ہیں یہ باتیں تو ان کو حقیقت میں ان کو جاتا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آپ یہ بعض اوقات تقریر بھی کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو ان کو جن کو تھوڑی بہت معلومات ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، یا تصوف کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ گھٹ لیتے ہیں، یار
क्या मार्फत की बातें कर रहा है, अपनी थोड़ी बातें कर रहा है, तस्वीर की बातें कर रहा है, फिर अपनी तरह मिला जुला करिए, बेचारों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और बस इनकी गाड़ी चल रही होती है। अल्लाह ऐसों के शर से बचाए, ऐसों को देखकर इनकी गली से मत गुजरो, वरना कैसा ना ईमान को कुछ हो जाए। आप सिर्फ उलमाए किराम से, वो भी उलमाए अहले सुन्नत से, जो सहाबा अहले बैत को भी बिल्कुल कंप्लीटली मानते हो, किसी भी सहाबी पर किसी भी अहले बैत के फर्द तनकीद का ना करते हो, ऐसे सुन्नी पक्के जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को सही मानों में मानते हो, मानने का दावा तो बहुत करते हैं, सही मानों में मानते हो, बस उनकी बात सुनो, उनकी सोबत मिले तो शहादत की बात है, आलिम बाअमल हो, है ना, शहादत की बात है, वरना फिर ये क्या रिस्क, चारों तरफ रिस्क है। लिबास खिज़्र में यहाँ सैकड़ों रैज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब पहचान पैदा हो तो उसके लिए भी इल्म चाहिए यार। मैं आपको बताऊं, पता अब दावत इस्लामी में बिल्कुल जम जा कि दावत इस्लामी आला हज़रत के कदमों में जमी हुई है, ये सब जानते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर आपके ईमान को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है, हम उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह की रहमत से आप दावत इस्लामी को छोड़ेंगे, इधर गए थोड़ा उधर चक्का उधर उड़ा, तो फिर कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए कि आपकी पहचान नहीं है ना, मसला ये। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को सलामत रखे और आप सब दावत इस्लामी का काम करते रहे तो इंशाअल्लाह गुमराहियों के बादल छटते रहेंगे, बेअमलियों का कला कमा होता रहेगा और सुन्नियत का और सही मतलब इस्लाम की जो तस्वीर है वो उभरती रहेगी लोगों के सामने और दुनिया के सामने। तो दावत इस्लामी वालों के जरिए कितने मुसलमान हो रहे हैं, यानी कि मतलब इनके सामने एक सही तस्वीर आती है इस्लाम की, बाकी गल्ला तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग मतलब कि इनकी तस्वीर ऐसी है दावत इस्लामी वालों की कि बोलते हैं अगर मुसलमान ऐसे होते हैं तो सही है, और अगर ऐसे होते हैं मुसलमान तो फिर हम क्या बुरे, माज़अल्लाह। वो ये इनका ये सोचना गलत होता है कि मेन तो अकीदा है, मुसलमान कितना ही गुनाहगार हो है मुसलमान ना, तो यही दुरुस्त है ईमान के एतबार से, लेकिन बल अमाल की जीनत तो जरूरी है, अमाल जरूरी है, ठीक है, ईमान और अमाल दोनों से काम चलेगा ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। तमाम आशिकाने रसूल को 1500वां जश्न विलादत मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। घर घर सजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आका से प्यार है सबको बताएंगे, सारे मिलन सुन्नत आपको 15वां जश्न विलादत मुबारक हो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह पाक देने वाला है। आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां जश्न विलादत मरहबा सर मरहबा, आए शाहे खत्म नबुव्वत मरहबा सर मरहबा। सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत मरहबा सर मरहबा, ए दीवानो झूम के बोलो। बारबी का नूर दिल पे छा गया, बारबी का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी नूर से सजा अर्श की बिरिया, नूर से सजा अर्श की बिरिया, आ गए नबी आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आका रसूल की आमद मरहबा। बाबा जान आपसे ये सवाल है, आपने फरमाया था कि 1500 बार दुरूद पाक पढ़ें, अगर कोई 1500 बार दुरूद पाक अधूरे रह जाए तो वो अगले दिन पढ़ सकता है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाम आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप खानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। रोज़ के 1500 दुरूद शरीफ पढ़ने की जो तरगीब है कि पढ़ा करें सारा महीना रबीउल अव्वल शरीफ का कम से कम। तो अब इसमें कि कभी ऐसा होता होगा कि जैसे सवाल में है कि अधूरा रह गया तो क्या करें, कभी अधूरा रह जाता होगा, पूरा ही भूल जाते होंगे या कोई ऐसी मसरूफियत हो जाती होगी कि नहीं कर पाते होंगे तरकीब। तो ये नीयत जो की है इसका क्या, तो जब नीयत करते वक्त तो दुरुस्त था कि मैं रोज़ 15 पढ़ूंगा,
तो अब ये गुनाहगार तो नहीं है, क्योंकि वो शरन तो वैसे भी 1500 कोई पढ़ना ये वाजिब फर्ज वगैरह नहीं है। तो अब अगर किसी का रह जाए, और हमारी जो तरकीब है कि मुमताज और ये जो भी 3 कैटेगरीज है ना, नहीं इसमें नहीं है 3 कैटेगरीज में 1500 है, रोज़ों में है तो 12, 7, 5 है ना। ये जो 12 रोजे नफल रखे रबीउल अव्वल शरीफ में तो पूरे 12, तो इसमें ये सबसे फर्स्ट नंबर इसका बेस्ट, और अगर 7 रोजे रख ले तो फिर बेटर, और 5 रखे तो गुड। लेकिन इसमें 1500 रोज के नियतें बेचते भी हैं भाई पढ़ने की, तो अगर रह गया तो दूसरे दिन कर लें, पूरा तीसरे दिन कर लें, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह आप नियतें भेजें इस तरह की, ज़हन में ये भी नियत शामिल कर लें कि मतलब ये कि अगर किसी दिन रह गया तो मैं आगे इसको पूरा कर लूँगा, यहाँ तक के एंड तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे पूरे हो जाएं। अगर जब रह जाते हो तो पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें यार, एक भी दुरूद पाक कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है कि कबूल ही कबूल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के जरिए भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। एक सवाल मौसूल हुआ है, हमने उलमाए कराम से सुना है कि कब्र में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाकर सवाल किया जाएगा कि इनके बारे में क्या कहते थे। सवाल ये है कि इस उम्मत से पहले क्या सवाल होते थे, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ मुत्तसिफ थे तो उस वक्त क्या सवाल होते थे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1338, अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी पीठ फेर कर चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है, फिर वो फरिश्ते उसके पास आकर उसे बिठा देते हैं और पूछते हैं मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम इस मर्द यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। मुसलमान जो मुर्दा होगा वो जवाब में कहता है अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह पाक के बंदे और उसके रसूल हैं। और मुस्नद इमाम अहमद की हदीस नंबर 2543 में यूँ है कि कब्र का इम्तिहान इस तरह होगा कि तुम मेरे जरिए आजमाए जाओगे और तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा। इसमें ये सवाल का जवाब तो नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है इसमें। ये जो कब्र के सवालात हैं वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से भी होते थे, क्योंकि ख़ास उस मौके पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया था कि अनकरीब जो है वो तुम्हें कब्र के अंदर उसी तरह आजमाया जाएगा जैसा कि दज्जाल के फितने से या उसके करीब फितने से तुम्हें आजमाया जाएगा। तो ये तो है जो सवाल का एक जुज़ था कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से भी ये सवालात हुए। और रहा पिछली उम्मतों का, तो इसके बारे में सही कौल ये है कि ये जो सवालात हैं ये इस उम्मत के साथ ख़ास है, पिछली उम्मतों के साथ ये सवालात नहीं होते थे। कब्र का इम्तिहान इस तरह होगा कि तुम मेरे जरिए आजमाए जाओगे और तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा। ये अब है इसकी वो कई रिवायतें हैं, इस पर कई रिवायतें हैं, यानी मुख्तलिफ सवालात की शरह हो ना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में ज़ियारत होती हो ज़ाहिरी हयात में। जी, ये तो ने सहाबा से खिताब फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इस पर तो मुत्तफिक हैं उलमा कि सहाबा के साथ तो ये हदीस थी ही थी, और हमारे उलमा अहले सुन्नत इस पर मुत्तफिक हैं कि ये क़यामत तक मुसलमानों के लिए है। सहाबा किराम को भी जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ थे उस वक्त भी ज़ियारत कब्र में होती है। इन ज़ियारत का मतलब ये है, इसमें जो इमाम अबू जमरा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह गुजरे हैं, उन्होंने बहजतुन नुफूस में ये बात इरशाद फरमाई है कि ज़ियारत का माना, क्योंकि हदीसों में बाकायदा यूँ नहीं है कि कब्र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ, तो उन्होंने फिर इसका माना यही बयान किया कि कोई बईद नहीं है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ, और ये भी हो सकता है कि पर्दों को उठा दिया जाए। तो असल तो पहचान थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो चूँकि हादा का जुमला है मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, और हादा जो है इसके बारे में ये अरबी ग्रामर के अतबार से कि ये महसूस मुबसर इन करीब की जो चीज़ होती है और देखी जाती है उसकी तरफ इशारा होता है। तो ये हादा के जुमले से हमारे उलमा ने इस्तेलाल करते हुए बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लेकर आएंगे। तो ये सवालात होते थे। अब उस वक्त क्या कैफियत होती थी ये तो गैब है हमारे सामने, लेकिन इसमें एक जुमला जो है इससे ही वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल ये होता था, और मुमकिन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाएं उसके अंदर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के जरिए से सवाल करने